Okay, very lovely. Good morning, students. So hope you have revised the work that we have done with the chapter Ruling the Countryside. So we have started this chapter, Ruling the Countryside, that how the East India Company got the right of Diwani from the Bengal. Okay, so just we will revise all the previous work that we have done and then we will continue further. So firstly, we have discussed that how the company, okay, it has got Diwani over Bengal. Okay, so first company has got Diwani of Bengal. So but we know the company has come here only for trade. Okay, so company has come here only for trading activities. So he was not in, he has earlier he was not having any interest to for ruling the country. Okay, earlier he was not interested in ruling. So just he was that company was interested in revenue. Okay, revenue was the main aim. So revenue was the main aim of the company. Okay, so his main aim was to gain large revenue. To gain large revenue as it can. Okay, so it started collecting revenue only from the area where it has got the Diwani. So it just was interested in collecting and increasing their profit, because earlier what he was doing, because company was here doing the trade of spices, cotton, silk. Okay, so these things he was in trading, and for trading in these things earlier they were importing gold and silver. They were giving gold and silver and they were purchasing the things. Okay, earlier it was the same things, because if they have to purchase cotton or silk, then in turn, okay, they have to give gold and silver. So that gold and silver they used to import from the England earlier, but now they have got the Diwani of Bengal. So they were now using the money that they have got from collecting the revenue. Okay, so they were utilizing the same. So now they were utilizing the same for purchasing all these things that they were trading from India. So they were collecting revenue from India only, purchasing things and getting all the profit. So this was the main aim. The company's main aim was profit only. So they were earning profit. But slowly what happened? Because all this burden was on peasants, was on craft person who was making all these things. So the villagers, the craft persons, they began to leaving the villages. They started deserting the villages, and slowly that there were also agricultural product that was also not so better due to the famine. There was also one famine occurred, okay, at that time. So that's why the agricultural product that was also very less. So in the same condition, but the the company, its main aim was to collect revenue, so that it started collecting. But the condition of farmers, craft persons, so they were not in a position to pay all the revenue. So the this company was in crisis. How to get over this problem that they are not able to give the revenue. So now they started some different methods for collecting revenue that we have discussed. So what were the different 3 methods that they have used for collecting revenue? So
दे स्टार्टेड फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। देन परमानेंट सेटलमेंट में व्हाट इट वाज देयर कि दे हैव फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रेवेन्यू उन्होंने फिक्स कर दिया था। एंड दैट फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू जमींदार और डिफरेंट जो स्मॉल राजास तालुकदार दे यूज टू कलेक्ट दोज रेवेन्यू, जो वहां पे राजा थे, ठीक है, जैसे उन्होंने दीवानी ऑफ बंगाल तो राजा से ले ली, बट लेकिन सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, बाकी किंग वाज अलाउड टू रूल, बाकी सारे काम किंग को करने दिए, ठीक है। तो नाउ उन्होंने क्या किया, परमानेंट सिस्टम स्टार्ट किया, फिक्स्ड रेवेन्यू था उसमें, ठीक है, फिक्स्ड रेवेन्यू में जो डिफरेंट जमींदार राजास, ठीक है, वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू। किससे कलेक्ट करते थे, डिफरेंट पीजन्स, क्राफ्ट पर्सन, उनसे कलेक्ट करके दे गिव टू द कंपनी, ठीक है, वो कंपनी को देते थे। तो दिस वाज द परमानेंट सेटलमेंट। सेकेंड सेटलमेंट हमने की, दैट वाज द महलवाड़ी सेटलमेंट। सो महलवाड़ी सेटलमेंट में, अब इस सेटलमेंट में क्या प्रॉब्लम थी, इस सेटलमेंट में जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स था, ठीक है, चाहे क्रॉप्स कम हुई है, फसल कम हुई है, तो किसानों के पास नहीं भी है पैसे देने के लिए, तो भी उनको देना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू। अगर इन केस वो ना दे पाए, देन देयर लैंड वाज सीज्ड बाय द जमींदार, तो उनकी लैंड इन जमींदार से उस पर कब्जा कर लेते थे। अगर कोई जमींदार कंपनी को लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाता था, तो जमींदार की लैंड भी कंपनी के पास चली जाती थी, ठीक है। तो इसमें जो रेवेन्यू था वो फिक्स था। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, अगर कभी फसल अच्छी हुई, ठीक है, ये तो चलो फसल कम हुई, अगर इन केस कभी फसल अच्छी हुई, जमींदार को बहुत फायदा हुआ, लेकिन कंपनी को तो फिक्स ही मिलेगा, कंपनी को फायदा नहीं हुआ, तो इसलिए कंपनी ने इसमें चेंज किया, कंपनी ने इसमें चेंज करके महलवाड़ी सिस्टम। अब इसमें क्या किया जाता था, एक विलेज की पूरी लैंड को मेजर किया जाता था कि हाउ मच एरिया ऑफ लैंड इज देयर, हाउ मच फर्टाइल लैंड इज देयर, ठीक है, कि लैंड कितनी फर्टाइल है, तो उसकी लैंड के अकॉर्डिंग उसको मेजर करके कि इसमें से कितना रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बन सकता है, उसको प्रॉपर एस्टिमेट किया गया, ठीक है। फिर उसका रेवेन्यू कलेक्ट, जो भी रेवेन्यू था वो डिसाइड किया गया, और वो रेवेन्यू किसने देना होता था, एक विलेज ने, तो एक विलेज को महल कहा जाता था, ठीक है। और वो विलेज का जो हेडमैन होता था, जो विलेज हेडमैन होता था, वो रेवेन्यू पे करता था, ठीक है। ये सिस्टम स्टार्ट किया गया, बहुत टाइम तक ये सिस्टम भी कंटिन्यूटी में रहा। फिर कुछ एक एरियाज में, ठीक है, कुछ एक एरियाज में जहां पर कि थॉमस मुनरो ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया, दैट इज रियोतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। वो सिस्टम उसने स्टार्ट किया, अब उसमें जो रेवेन्यू था वो कौन देता था, रियोतवाड़ी सिस्टम में रियोत, रियोत मतलब किसान, पीजेंट, तो रियोत जो था वो देता था, यस, इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है, यस, ठीक है, क्योंकि थॉमस मुनरो ने ये सिस्टम स्टार्ट किया था, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मुनरो सिस्टम। तो रियोतवाड़ी सिस्टम भी स्टार्ट किया गया, इसमें एक जो पीजेंट की फैमिली होती थी उसको की जो रेंट था, रॉयत, रॉयत मतलब पीजेंट, उसको रेंट देना पड़ता था। तो ये सारे सिस्टम भी कंपनी ने एस्टैब्लिश करके देख लिए फॉर कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही थी कि और ये जितने भी सिस्टम थे, बेनिफिट तो कंपनी को हो रहा था, ठीक है, ये बहुत सारे सिस्टम भी उन्होंने बना दिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, जो पीजेंट्स सफर कर रहे थे, सबसे ज्यादा तो पीजेंट्स ही सफर कर रहे थे ना। इन ऑल द रेवेन्यू सिस्टम्स peasants were suffering कि whether they are in benefit or not, but they have to pay land revenue. तो peasants suffer कर रहे थे, artisans suffer कर रहे थे, तो धीरे धीरे they started leaving the villages and moving to the cities. And now फिर कंपनी ने अपना और दिमाग लगाया कि now what we will do,
ठीक है। नाउ अब क्या किया जाए, तो उस टाइम पर व्हाट दे वर डूइंग ट्रेड। ये तो हमें पता ही है कि वो ट्रेड कर रहे थे फॉर कॉटन, सिल्क, ठीक है, ये सारी चीजें मेन एम उनका था। तो अब इसी मेन एम में उन्होंने फोकस किया कि क्रॉप्स फॉर यूरोप, क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब उनका मेन एम तो रेवेन्यू ही है, रेवेन्यू कलेक्शन ही है, ठीक है। उन्होंने अलग अलग सिस्टम भी एस्टैब्लिश करके देखे, ठीक है। तो अब वो मेन क्रॉप्स क्या थी, अब उस टाइम पर जो यूरोप में इंडस्ट्रीज लग चुकी थी, इंडस्ट्रियल स्केल पे क्रॉप्स, कॉटन की प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है। उन क्रॉप्स में तो उनके लिए उनको इंडिगो की और एक ओपियम, ठीक है। अभी ओपियम इनकी प्रोडक्शन अभी गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। इसकी जैसे अफीम हम कह सकते हैं, तो उसकी खेती भी करवाई जाती थी, तो उसके लिए तो अभी गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है। उस टाइम पर ये अंग्रेजों ने इन दोनों की भी क्रॉप्स, ठीक है, उसके साथ में ये टी, शुगर केन, ठीक है, ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स, तो ये सारी क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन थी उनमें इस पर फोकस किया, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि जो किसान है वो इनको ग्रो करे, इन क्रॉप्स को ग्रो करे, ठीक है, ताकि इनकी डिमांड यूरोप में है, वो यूरोप में ये क्रॉप्स यहाँ से कम रेट पे परचेज करके लेके जाएं, ठीक है। यस, ये संजना, then tea they were producing, and then they were also doing trade with China, and they were having profit also. Yes, so जो भी वेजिटेबल फॉर्म से उनको उन्होंने इन ऑल कमर्शियल क्रॉप्स के लिए कन्वर्ट किया, किसानों को उन्होंने फोर्स किया, उनको फोर्स किया गया कि यू हैव टू प्रोड्यूस दीज क्रॉप्स, ठीक है, कि आपको यही क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना है। अब इसमें जो इंडिगो है, आई थिंक ये क्लियर होगा, इंडिगो प्लांट इज यूज्ड फॉर ब्लू कलर, ठीक है। तो जो वहां पे कॉटन, यूरोप की इंडस्ट्रीज में कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस किया जाता था, उसमें ब्लू कलर के लिए उनको इंडिगो की जरूरत पड़ती थी। सो दे फोर्स्ड ऑल द फार्मर्स फॉर प्रोड्यूसिंग दीज ऑल कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। जैसे जूट इन बंगाल, बंगाल में उन्होंने जूट का प्रोडक्शन, असम में टी, शुगर केन इन जैसे उत्तर प्रदेश, वीट इन पंजाब, देन कॉटन इन महाराष्ट्र, ठीक है, इन पंजाब, और मद्रास में राइस। तो ये सारी, मतलब ये कि लार्ज स्केल पे ये जो सारी क्रॉप्स थी ये बेची जाती थी इन यूरोप। तो ये सारी जो भी क्रॉप्स वो यूरोप में ज्यादा रेट पर बेच सकते थे, यहाँ पर उन्होंने क्या करना था, यहाँ पे चीप रेट में खरीदना था और आगे जाके हाई रेट में बेचना था। किसानों को फोर्स किया उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, और उन्हीं क्रॉप्स को वो किसानों से परचेज किस रेट पे करते थे, हाई रेट पे कि लो रेट पे? यस, लेस रेट पे। यस आरिश, तो लेस रेट पे उन्होंने किसानों से परचेज कर लिया, और यूरोप में जाके जब सेल किया तो सेल किस रेट पे किया? यस सानवी, गौतमवीर, यस, तो हाई रेट पे उन्होंने सेल किया, मतलब वो अपना, यस यस गौतमवीर, ओके, तो उन्होंने लेस रेट पे किसानों से परचेज किया, हाई रेट पे दे सेल इन यूरोप, सो दे वर मेन एम रेवेन्यू, प्रॉफिट, ठीक है, इनकम, तो यही उनका मेन एम था। तो उसी को उन्होंने फोकस किया, डिफरेंट तरह के वो तरीके टाइम टू टाइम उन्होंने अपनाए। तो यस, सो टिल नाउ
यस, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि नाउ दे फोकस्ड ऑन डिफरेंट क्रॉप्स विच दे कैन कैरी फॉर यूरोप, ठीक है, विच हैव डिमांड इन यूरोप. सो दीज क्रॉप्स दे वर हैविंग डिमांड इन यूरोप. सो व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? अगर हम जो आपके नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है कि इंडिगो की डिमांड क्यों थी. क्यों? क्योंकि जो इंडिगो प्लांट है वो ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा होता है. तो इंडिया, अगर हम बात करें तो इंडिया ट्रॉपिकल एरिया है. ज्योग्राफी में यू मे हैव हर्ड, ठीक है, एरियाज नियर द इक्वेटर. So our Indian subcontinent is near the equator, so it is a tropical area. So in the tropical area, the crops, this crop indigo, it has grown very well. ठीक है, तो प्राइमरीली ये ट्रॉपिक्स एरियाज में ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करती है. और ये जो इंडिगो थी ये डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि इटाली, फ्रांस, ब्रिटेन, उन सब में जो वहां पे इंडस्ट्रीज थी उन सब में ज्यादा डिमांड में थी. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इस पे फोकस किया. तो इंडिया से पहले बहुत कम इंडिगो कल्टीवेशन करते थे बिकॉज इंडिगो में जो था वो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा. यस, इंडिगो इज ऑल्सो कल्टिवेटेड टुडे ऑल्सो. ठीक है, तो इंडिगो जो था उस टाइम पे सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत खराब करती थी, तो इसलिए फार्मर्स इसको, और इसका इतना फायदा भी नहीं होता था, तो इसलिए फार्मर्स इसको ग्रो नहीं करते थे. तो पहले तो, लेकिन जब यूरोप में डिमांड बढ़ी तो कंपनी ने फोर्स किया पीजेंट्स को कि आप इंडिगो को ही ग्रो करो. पहले तो इतनी डिमांड नहीं थी. ठीक है, तो जिस चीज की जितनी डिमांड हो उसी का उतना, in the that way if the demand is more then the work is being done. ठीक है, जिसकी डिमांड होगी. तो इंडिगो की जैसे डिमांड यूरोप में बढ़ी, कंपनी ने पीजेंट्स को फोर्स किया, उन्होंने भी इंडिगो आगे ग्रो करनी स्टार्ट की. ठीक है, और यूरोपियन मार्केट में जिसकी डिमांड थी इन सभी का रेट बहुत ज्यादा होता था. ठीक है, यूरोपियन मार्केट में इंडिगो, ओपियन, इन सब का रेट बहुत ज्यादा होता था, लेकिन जो कंपनी थी वो फार्मर्स को बहुत कम रेट दे रही थी. Okay, so I hope till this all the points are clear to you. So you now for today you will revise till the topic why the demand for Indian indigo. Okay, and we will continue this topic tomorrow. Okay then, thank you.